Okay, so evidence-based practice, EBP in physiotherapy practice, of course. So as I introduce myself, I'm Shivam Sharma. So I'm a clinical researcher and a physio, and mostly I'm doing my master's in sports therapy. So I have a little bit inclination about musculoskeletal and sports conditions, but I'm not restricted to that. So as per Google, when we find out what is evidence, is it like, the evidence we talk about in what you say, courts, high courts, or in legal ways? एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं हम किसी को पकड़ने के लिए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं भी है और है भी, क्योंकि एविडेंस का मतलब यही है कि यू आर आस्किंग a proof of something that if this is applicable or not. So definition of evidence क्या है? Any information presented in legal proceedings that help prove or disprove a fact. This is the actual definition of an evidence. But does it mean in evidence in medical terms? Use uses the scientific method to organize and apply the current data to improve healthcare decisions. Very important line, to improve healthcare decisions. Does the best available science is combined with both healthcare's professional clinical experience and patient values to arrive at the best medical decision. So yeah, अगर patient के values के अंडर है वो और हमारी clinical experience के अंडर है, कोई भी डाटा, कोई भी एविडेंस अगर हम उसको इम्प्लाई करते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट. ओके, सो ऑल ऑफ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो कि एविडेंस है, पेशेंट है, ये है, वो है. आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है आज से, कि आप कोई भी पेशेंट ठीक करेंगे ना, उसको आप पेशेंट की तरह देखेंगे, ना कि अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को शो ऑफ करने के लिए, या अपने एक्सपीरियंस को शो ऑफ करने के लिए, या किसी और को गलत प्रूफ करने के लिए, या किसी और को इंफीरियर फील करवाने के लिए. बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यू नो दैट. एम आई राइट और नॉट? ओके, सो एविडेंस का मतलब ये है कि यू आर डूइंग जस्टिस फॉर द पेशेंट, टू द पेशेंट एंड ऑफ द पेशेंट, नथिंग एल्स. जब तक पेशेंट का प्रायोरिटी सबसे पहले नहीं होगा, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई एविडेंस टू योर प्रैक्टिस. वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि हमेशा हर चीज साइंस नहीं होती. इट इज यूजुअली science plus philosophy. Okay, so science and philosophy makes up our whole universe, right? Okay, so we have seen this particular picture at many places. Clinical judgment. Okay, best evidence available and patient's value. These all make up EBM, or evidence-based medicine or evidence-based practice. इसमें आप जो तीन कंपोनेंट देख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट बेनिफिट एंड हार्म्स, टाइम होराइजन टू बेनिफिट, क्लिनिकल जजमेंट्स में इंडिविजुअलाइज्ड रिस्क प्रोफाइल, प्रोग्नोसिस, सोशियो पर्सनल कंटेक्स्ट, पेशेंट वैल्यू में शेयर डिसीजन मेकिंग. डोंट बी स्कैर्ड. ओके, आपको इसमें से कोई भी टर्म अगर समझ नहीं आ रही है, यू विल क्लियर इट आउट विद द टाइम आई पास. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why are we studying that in physiotherapy science? Very important thing. Some of you might know this guy, Jethalal from Tarak Mehta ka Ulta Chashma. I love this show, and this expression is always mandatory whenever we are thinking, we are studying something which is new to us, कि ये हमारे काम का है ही क्या इसमें, राइट? हाँ, अभी हमने आपको बता जरूर दिया है कि आपके काम का क्यों है, पर दिस इज द होल सिनेरियो. Why evidence based practice is important? Okay, there are a lot of benefits. You can have a screenshot of this whole slide, because it has majorly 5 points which you will get anywhere whenever you are studying evidence-based medicine or practice. Okay, integration of research, clinical expertise, patient-centered care, continuous learning, accountability, and quality improvement. Okay, these 5 parameters, these 5 benefits of practicing evidence-based medicine is shown on your screen.
ओके, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स के साथ चल नहीं रहे हैं, देन यू आर नॉट एबल टू मेक गुड क्लिनिकल डिसीजंस। अगर आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज ईबीपी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, देन द पेशेंट्स वैल्यूज माइट बी हैम्पर्ड। एंड एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पेशेंट केयर होनी चाहिए, पेशेंट सेंटर में होना चाहिए आपके, बाकी सब चीजें बाहर। इट इज अ कंटिन्यूस लर्निंग। ओके, बहुत लोगों को लगता है फिजियोथेरेपी कर ली है, डिग्री हो गई है, मास्टर्स हो गई है, कुछ लोगों की पीएचडी भी हो गई है, एंड दे जस्ट स्टॉप रीडिंग, दे जस्ट अप्लाई व्हाट दे हैव read all their academic life, which is not a good thing, because जब हम बोलते हैं कि एक बार आप मेडिसिन में मेडिकल करियर में घुस गए तो हमेशा पढ़ना रहता है, दैट इज वाई कि हमेशा पढ़ना होता है। यू हैव टू इन अ फील्ड वेयर यू आर डेडिकेटिंग ऑल योर लाइफ टू पेशेंट्स, एंड पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज होता है, पेशेंट्स की डिजीज का कैरेक्टर चेंज होता है, और उसके साथ ही उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्रोफाइल ऑफ द डिजीज इट चेंजेस। ओके, एंड दैट नीड्स कांस्टेंट लर्निंग एंड कांस्टेंट रीडिंग। सो एज आई से कंटिन्यूस लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि some conditions don't have a particular treatment, and sometimes when the condition have no particular treatment, we refer to articles, direct articles. How? For example, if I was working in PGI, I was working in a pediatrics ICU, and वहाँ पे I was seeing patient की file में कुछ treatment लिखा है, and they are doing that treatment, और end में उन्होंने एक research paper लगाया हुआ है ना, they're telling कि इस पेपर के हिसाब से हमने ये ट्रीटमेंट दिया है। सो this gives you accountability, कि you are not doing anything random, or anything fake, or anything influenced by people. You are not doing that. You are doing that with your senses, with the intellect. You are reading any particular paper, okay, and then you are applying it to the patient. अभी तक किसी को कोई डाउट इन सब में? प्लीज लेट मी नो। No, sir. You can you can tell the questions in your account, in the chat box, if you are hesitant to speak on the first day. But I'm telling you, जब भी मेरे साथ क्लास या मेरे साथ कोई लेक्चर होगा या हैप्पी के साथ भी होगा, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इंटरैक्टिव। वी कैन आस्क डायरेक्टली टू समवन। ओके, अगर आप खुद नहीं बोलेंगे तो हमें डायरेक्टली आना पड़ेगा। तो आई होप सो योर inputs come by hand with time. And yes, if you want to change a field, if you want to revolutionize a field, you want to evolve a field. So I'm using three words: evolve, revolution, and also contribute. If you are want to do this in your field, you need to do research, or even do clinical practice oriented to research. Okay, and वही बात है, आप सबके आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, एंड कुछ लोग चलो बोल पड़ते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, एंड दैट्स द फोटो यू हैव सीन। इफ nobody will notice, if nobody is there to notice, और if you don't notice, अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आपसे ही आपका प्रोफेशन शुरू होता है, ना कि बाकी लोगों से। डोंट थिंक दैट कि शिवम सर या शिवम प्रोफेशन को बदल देगा कहीं ना कहीं, या आई वुड से सम ऑफ तुम में से कोई एक कोई प्रोफेशन को बदल सकता है। नो, इट स्टार्ट्स विद यू। इट डजंट एंड विद यू, बट इट स्टार्ट्स विद यू, ऑफ कोर्स। ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज द विलन ऑफ दिस होल पिक्चर। और इन ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को हमने बाहर का रास्ता दिखाना है इस कंट्री से, और इवन इन दिस होल वर्ल्ड। And yeah, a very, very important question: how to aware ourselves with the latest evidence, or trust the clinical advice. अगर मैं आपसे किसी पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना, आई एम टेलिंग आपको इस पेशेंट के साथ ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, या ये डिजीज हो सकती है, वो डिजीज हो सकती है, हाउ वुड यू रिलाई ऑन माई इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग, हाउ यू कैन गेट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च. You see me on MCL, I share post, me and Happy share post, a lot of posts and a lot of content on your
group and on the Instagram, how you can get aware of these things, that is very important, क्योंकि ईबीपी का कोर्स तो अगले 3-4 हफ्ते चलेगा, बट आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस तो आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहेगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कोर्स दोबारा लगाने आएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं। ओके, आई एम सॉरी फॉर द connections and all. I'm not sure why it's happening, but yeah. So this course, इस कोर्स पूरे कोर्स का मतलब ये नहीं है कि कि मुझे आप लोगों को आज के लिए बता देना कि आज आज हम क्या सीखेंगे, या आप कैसे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। आपको कैसे एविडेंस के साथ अवेयर रहना है, दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स। बट सम थिंग्स। ओके, सो नो वीडियोस, फोटोज और पेशेंट रिव्यूज, especially from social media. You can see three pictures around you. Your Honor, I got screenshots, IFT for back pain, slip disc का सटीक इलाज, best 7 exercises by physiotherapists. Full bullshit. Okay, bullshit. Sheer words bullshit. These things are not meant for you guys. Okay, these are meant for some patients. जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए यूट्यूब से या अपने सोशल मीडिया से कि इस कंडीशन के बारे में क्या होता है, and not for you guys. Okay, so don't believe in videos, photos, and patient reviews. Very, very important. I have seen some people putting videos of their patients and saying ये ठीक हो गए, ये ठीक हो गए. Okay, I respect their hard work and I respect that. But when I get deep into it, when I get very objective कि मुझे इस ट्रीटमेंट को मानना है या नहीं मानना, I would ask the evidence from that guy. Okay. And one thing which is very important for you guys, from today you should ban yourself to ask social media or use social media for patients unless you read for yourself. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है वो गलत है, नहीं। पर अगर वो सही है या गलत है, वो आप खुद पढ़ के डिसाइड करेंगे, ना कि उस पोस्ट को रिलाय करके उस पोस्ट के हिसाब से चलेंगे। ओके। एंड ऑलवेज देयर 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 इज अ सेक्शन वेयर लोग बताते हैं कि हमने जो ये सारा डाटा लिया है, हमने जो सारा कंटेंट बनाया है, वो किस किस रेफरेंस से लिया है ना। अगर उस पोस्ट में या उस वीडियो में वो चीज है, तो यू कैन बी अ लिटिल अश्योर्ड अबाउट द कंटेंट कि हाँ ये कंटेंट ऑथेंटिकेटेड है। पर अगर वो बिल्कुल भी नहीं है, तो समझ जाओ कि इसको इसका तो टाइम वेस्ट होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो एक आपके लिए टिप है जो मैं यूज करता हूँ, हैप्पी यूज करता है, कि वी डोंट सी कंटेंट विच हैव नो रेफरेंसेस। एंड ऑफ कोर्स when we are doing MCL course, how can you get updated from the latest evidence? MCL का upper limb का EBP का course is one of the things you will get to hear about the latest evidence, how you can aware yourself. Okay, so थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं आने वाली सीरीज में, कि ये चीज वो चीज। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी याद कर लो इस चीज को, बट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, रीड इट अपॉन लेटर, आज या कल में, and get to know that words. And even if you don't get the meaning of it, ask again, come back and ask again on the group or personally message karke. And don't be the guy in the picture, visible confusions. You are seeing something and you're still confused. That should not be one thing in this lecture. So hierarchy of evidence. जैसे जैसे हम ट्रायंगल के ऊपर जा रहे हैं, ओके, एविडेंस का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होता जाता है। क्वालिटी मतलब होता है कि कितना रिलाय कर सकता हूँ मैं इस इंफॉर्मेशन पे। ओके। मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू सबसे ऊपर है। तो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, आई विल टेल यू।
But I will start from the bottom, that is the purple one. It is background information expert opinion. आउट ऑफ द ब्लूज शिवम शर्मा जी कहते हैं कि बैक पेन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस दिमाग का खेल है। तो दिस इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन बाय मी। तो इसकी कितनी रिलायबिलिटी है या नहीं है, वो आप समझ पाएंगे कि आप मुझसे पूछ लेंगे कि हाउ कैन यू से दैट, राइट? एंड इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव योर क्वेश्चन विद रेफरेंसेस, विद आर्टिकल्स, विद एविडेंस, that opinion has no value. Okay, but if a guy has worked in that field for a very long time and is with research के साथ वो ओरिएंट होके चलता है, उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट एक्सपर्ट ओपिनियन आते जाते रहते हैं, so we don't care about it. Then is the case series and the what you say, the case reports. These studies are कि किसी एक कंडीशन पे कोई नया ट्रीटमेंट करके देखा, वो काम कर गया तो उसको पब्लिश कर देंगे। कोई नया टाइप की बीमारी हमारे सामने आई या नया कोई टाइप ऑफ फ्रैक्चर हमारे सामने आया, हमने उसको रिपोर्ट कर दिया, दैट मेक्स इनटू अ पब्लिकेशन। So these publications have no much reliability also because it is one patient or two, three patients only. Case control means कि there is a case, there is a control. Case means कि किसी एक ग्रुप को बीमारी है, कंट्रोल मीन्स कि उसको भी बीमारी नहीं है। ओके, एंड उन दोनों ग्रुप्स में हम कोई कॉमन चीज चेक कर रहे हैं, और अगर कंट्रोल में वो चीज नहीं है और केस में वो चीज है, तो हम एक रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ, अगर इस पर्टिकुलर फैक्टर की बात करें तो जिनको ये इंजरी होती है, जिनको ये बीमारी होती है, उनमें ये फैक्टर पॉजिटिव होता है, और जिनको ये नहीं होती है उनमें नहीं होता है। तो वो जो फैक्टर है दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंजरी। या फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू कि मैंने पूरे एक क्लब में जाके ये देखा कि कितने लोगों को डायबिटीज है, और डायबिटीज अगर 10 लोगों को है 100 में से, उन 10 में से अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लोग चीनी खाते थे, 5 लोग अल्कोहल पीते थे, 5 लोग अल्कोहल नहीं पीते थे। ओके, 100 में से 10 को डायबिटीज है, 5 अल्कोहल पीते थे, 5 अल्कोहल नहीं पीते थे। इसका मतलब ये है कि जो डायबिटीज है ना, वो अल्कोहल से डिफरेंशिएट नहीं होती है, क्योंकि बाकी जो जनता है वो भी अल्कोहल पी रही है, और वो लोग भी पी रहे हैं, पर 90% ऑफ द पीपल को डायबिटीज नहीं है, और सिर्फ 10% ऑफ द पीपल को डायबिटीज है। ओके, सो अल्कोहल वुड नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर दिस। बट हाँ, इसमें बहुत सारे कंपाउंडर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, सो this whole class is not about research, but it's about explaining you some terms. अभी तक किसी को कोई डाउट? Okay, so cohort is one of my favorite studies because of it's a good uh, observation। कैसे कि कोहर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हमने ओवर द टाइम ऑफ द ईयर्स और मंथ्स ऑब्जर्व किया कि इस ग्रुप में वो चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन, हम क्या कहते हैं कि क्यू एंगल कुड लीड टू एसीएल इंजरी, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ओके, तो हमने क्या किया, जो ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास थे उनमें हमने क्यू एंगल सब में चेक कर लिया, जो भी वैल्यू आई आई डोंट केयर। तो मान लो क्यू एंगल हमने सारे ग्रुप में चेक कर लिया, और हमने उन्हें बोला जाओ अब खेलो, आप 1 साल तक खेलो, 1 साल बाद वापस आना। 1 साल बाद वो वापस आए, उनमें से देखा कि 10 में से 4 लोग इंजर्ड थे। ठीक है, अब 4 लोग जो इंजर्ड थे 10 में से, उनका क्यू एंगल वर्सेस जो 6 लोगों का क्यू एंगल है उसको कंपेयर किया गया। तो फिर हम उससे देख सकते हैं कि क्या क्यू एंगल दोनों ग्रुप्स में सेम था। अगर तो सेम था, अगर क्यू एंगल ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का सेम था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसीएल इंजरी है वो क्यू एंगल से इफेक्ट नहीं होती है। पर अगर जो इंजरी ग्रुप था उसका क्यू एंगल बड़ा था, और इंजरी ग्रुप Q2 का जो नॉन इंजर्ड ग्रुप था, उसमें जो क्यू एंगल था वो छोटा, नॉर्मल था, छोटा था, तो उनको इंजरी नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद क्यू एंगल की वजह से भी इंजरी हो सकती है। आई एम अगेन सेइंग शायद, रिसर्च में हम कभी भी कुछ कंफर्म नहीं कहते।
देन द गुड क्वालिटी ट्रायल्स, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें एक ग्रुप, दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल होता है जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा होता है, एंड दूसरा एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देते हैं दूसरे ग्रुप को, एंड हम दोनों को रैंडमाइज करते हैं। मतलब ये कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम पर्टिकुलर ग्रुप को ही वो ट्रीटमेंट देंगे, हम रैंडमली असाइन करते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप्स। ओके। और रैंडमली रहता है सब कुछ, हम जो जो रिसर्च कर रहा होता है वो भी ब्लाइंडेड होता है, जो पेशेंट होता है वो भी ब्लाइंडेड होता है कभी कभार, एंड दिस गिव्स अस गुड गुड यू नो गुड रिजल्ट्स। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं दैट आर गुड, बट अगेन आई विल टेल यू व्हाई व्हाट टू बिलीव इन एन आरसीटी या नहीं। एंड देन देयर आर मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज। सो बहुत सारी ये जो स्टडीज हुई है ना, ग्रीन से नीचे नीचे, if I try to do this, ये वाला पूरा जो हिस्सा है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो सारी स्टडीज को अगर मैं कंबाइन कर दूं, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे इस पूरी एमसीएल सीरीज पे अगर मान लो 20 बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो 20 बच्चे के 20 बच्चों ने, ये 20 स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगह पर रिसर्च किया सेम टॉपिक पर। ओके। सबने एसीएल इंजरी और क्यू एंगल का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करी है। ठीक है। और वो 10 स्टडीज उन्होंने पब्लिश भी कर दी, सॉरी 20 स्टडीज पब्लिश भी कर दी। अब मैं क्या करूंगा, उन सारी 20 स्टडीज को कंबाइन करके एक रिजल्ट बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है। अब सिस्टमैटिक रिव्यू इज अ क्वालिटेटिव थिंग, मतलब कि हमने बस ओवरऑल बताना है कि फायदा था या नहीं फायदा था, या क्यों एंगल करता है काम नहीं करता है, कुछ भी रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है। बस हाँ या ना, या पॉसिबल या माइट बी पॉसिबल। पर अगर मुझे एक एक्चुअल नंबर बताना है कि दिस मच परसेंटेज विल बी अफेक्टेड, कि 50% लोग विल बी अफेक्टेड या 50% रिस्क ज्यादा हो जाएगा, दैट इज मेटा एनालिसिस। ये डाटा के साथ चलता है। ठीक, डाटा इसमें कंपेयर करना पड़ता है। ओके। सो बहुत ज्यादा हो गया, आई नो दैट, बट डोंट वरी। जैसे जैसे हम आगे हम आपको कोई भी एविडेंस देंगे किसी भी कंडीशन के बारे में, यू विल रिमेंबर दीज टर्म्स। ओके। So now I'll tell you where you can get, this picture is very beautiful picture. मुझे बस मिल गया इंटरनेट पे कहीं। So what evidence you can get from these type of things, कि मुझे अगर आरसीटीज देखना है तो मुझे कहाँ ढूंढ जाना है, अगर मुझे कोई क्रिटिकली अप्रेस्ड सोर्स देखना है मैं कहाँ जाना है मुझे, अगर, हाँ क्रिटिकली अप्रेस्ड मैं आपको समझा दूं एक बार। अगर आपने अप टू डेट का नाम सुना होगा, तो अप टू डेट क्या करता है, आपको एक आप सर्च करेंगे गूगल की तरह उस पे, एंड आपको कंडीशन के बारे में सब बता देगा। ठीक है। और कंडीशन के बारे में सब बता देगा और आपको एविडेंस के हिसाब से बताएगा, तो इट्स वेरी इजी थिंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड वो हर एक, जैसे मैं आपको आज बताने लगा हूँ ना कि इस कंडीशन के लिए ये चीज बेस्ट होती होगी या इस कंडीशन के लिए ये चीज बेस्ट होती होगी अभी तक, तो वो पूरी जो साइट है वो यही काम कभी कभी कर देती है, बट इट इज यूजुअली मेड फॉर मेडिकल कंडीशंस। तो फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ आया नहीं अभी फिजियोपीडिया के अलावा, वो भी अभी भी बहुत आउटडेटेड रहता ही है। एंड देन द कॉकरेन रिस्क ऑफ कॉकरेन डाटाबेसेस एंड सम सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड ऑल। सो ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेट मी इरेज इट ऑल सो दैट क्लियर रहे सब कुछ। अभी तक किसी को डाउट है कोई तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मतलब आई एम नॉट श्योर कि इफ यू आर गेटिंग दिस ऑल और नॉट। 100% तो नहीं आएगा, बट वी कैन मेक इट एटलीस्ट 50% फॉर नाउ। So happy, what type of articles you read usually for your for any of your practice, like in subcategories में से what you read, like do you prefer meta-analysis or do you prefer RCTs or do you prefer cohort, what type of studies you study? Happy? Happy, am I audible? Yes, yes, Dr. Shivam. Thank you for this wonderful illustration, like जो आपने समझाया एविडेंस के बारे में कैसे हम को प्रैक्टिस करेंगे. सो पर्सनली आई प्रेफर लाइक जैसे कि आपने हायरार्की में बताया कि हाँ क्या क्वालिटी ऑफ एविडेंस है, कैसे
किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो लाइक क्या हमारा क्वालिटी होता है, किस तरफ क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। तो पर्सनली लाइक सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस इज द बेस्ट, लाइक जो हमारी ओवरऑल जितनी भी स्टडीज हुई है उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस सभी को कंबाइन करके जो एक क्रक्स रिजल्ट मिलता है हमें, उस सबको कंबाइन करके एक हमारे सामने वो रखता है। तो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस इज द बेस्ट। उसके बाद में अगर हम देखते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, लाइक जो आरसीटी स्टडीज हम कंसिडर करते हैं, ऑब्वियसली जैसे कि आपने समझाया भी, आरसीटीज और जो कोहॉर्ट स्टडीज होती हैं वो काफी लाइक इट्स अ टाइम टेकन। ठीक है, हम उसका फॉलोअप लेते हैं, पर्टिकुलर एक जो भी हम कंडीशन का इंटरवेंशन दे रहे हैं, या जो भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर टाइम पे उस पे लाइक फॉलोअप्स के साथ उसका पर्टिकुलर चेक करते हैं। एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, दैट मे बी लाइक जो भी हमारी स्टडी का टाइम पीरियड है, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे आते हैं। सो लाइक सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस के बाद आरसीटीज, कोहॉर्ट्स, एंड देन लेटर ऑन अगर उस टॉपिक पे कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है तो हम स्टडी डिजाइन से उन पे प्रेफर करते हैं। सो दैट्स वेरी नाइस जो आपने समझाया अभी। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें लाइक आप पूछ सकते हैं अभी। Yeah, this because this is a very important slide and very important for those who are reading research. Okay, कोई बात नहीं, अगर अभी डाउट नहीं कोई आ रहा तो just read it out for yourself and we can discuss it in the Sir, next lecture or yep, yes, am I audible? yeah, you're audible. ओके, सो जैसे कि इससे पहले तक हमने कभी रिसर्च पढ़ी नहीं और अब हम Yeah. रिसर्च मतलब पढ़ेंगे या फिर वॉट एवर जो भी आप पढ़ाएंगे वो जानेंगे। तो जैसे हाँ, एक सब्जेक्ट होता है अगर वो जो फाइनल ईयर में होता है हाँ. उसमें हम थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं। तो वो ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बस कि पढ़ लिया और लिख के दे दिया बस। हाँ जी. अभी फिलहाल कुछ कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। जैसे ये याद तो आ रहा है आरसीटीज वगैरह कोहॉर्ट, लेकिन अब जैसे इस हिसाब से पढ़ना हो, नॉट फॉर मार्क्स बट फॉर नॉलेज, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए मतलब? Okay, don't worry about it. Uh, I ओके। always study things from a very reliable source. Okay, so it's a good thing you address that. We will send you a video already recorded on YouTube, not of ours, but of some other good researchers. So मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि just the lecture is not the part of this MCL course. We will provide you videos which you can access through that. वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि exactly किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको इस लेक्चर में ये सब कुछ इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड ऑल्सो इट इज नॉट अ रिसर्च क्लास, अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। ओके, यस यस यस। जितना भी मैंने अभी तक बताया इट इज द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोई भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि ये मेटा एनालिसिस क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस सब चीजों के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। तो आई डोंट वांट एनीवन टू फील लेफ्ट आउट। आई एम जस्ट, इफ यू वांट टू जस्ट रिमेंबर इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं to the triangle's peak, it is like you can trust this source, and जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं you have to avoid that source of information. You can just keep it to yourself but you can't apply to your patient. Okay, अब ओके आरसीटी सर, क्या है मतलब नहीं क्या अगर है, क्या कोहर्ट होता है, हाँ यस, कोई भी रिसर्च आती है तो उसमें ऊपर मतलब लिखा रहेगा कि इट इज़ अ मेटा हाँ एनालिसिस बिल्कुल, डन। बिल्कुल, सो वी हैव टू ट्रस्ट और हमको उतना ही इम्पोर्टेंस उस रिसर्च को देनी है। अगर जैसे कोई मेटा या एनालिसिस है, राइट, या यस, फिर कोई सिस्टमिक रिव्यूज है, तो हमको ऑफ उन्हें कोर्स, उतना इम्पोर्टेंस देना है, राइट? या या ओके ओके। ग्रेट, थैंक यू। सो दिस आरसीटीज आर वेरी गुड। कोई भी ट्रीटमेंट को हमें अगर मार्केट में नया लेके आना है कि दिस ट्रीटमेंट वर्क्स, आरसीटी से ही होता है वो शुरू, ठीक है। और आरसीटी होने के बाद ही, कुछ आरसीटी होने के बाद ही वी कैन डू अ मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू। तो आरसीटी यू कैन से यू इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग फॉर समथिंग न्यू। ओके, सो if anyone has a doubt do let me know, we can come back to this slide again if anyone has a doubt. So now this is a research bias, बहुत ही मोटा मोटा समझाऊंगा। बायस होता क्या है, बायस इज जस्ट लाइक, इंग्लिश में समझ लो या हिंदी में समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं इसको सिर्फ यही बोलता हूँ, चीटिंग।
मतलब चीटिंग हो रही है, पेपर में चीटिंग हो रही है, पेपर में की रिसर्च पेपर में कुछ घपला है, और रिजल्ट्स में, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने मैंने एक ट्रीटमेंट बनाया नया, फॉर एग्जांपल शिवम्स ट्रीटमेंट। जो शिवम्स ट्रीटमेंट है, XYZ बोल दूं मैं अगर उसको, तो मैं बोल रहा हूँ कि XYZ ट्रीटमेंट ना बहुत सही काम करता है, इवन बेटर देन अ सर्जरी इन सम कंडीशंस। तो XYZ ट्रीटमेंट जो है ना, मैंने पेपर बनाया, मैंने RCT करा, मैंने पब्लिश कर दिया उसको। पर अब क्योंकि मैं शायद एक जगह बायस्ड हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट एक काम करना चाहिए, मेरा ट्रीटमेंट एक काम करता हुआ दिखना चाहिए पेपर में, मैंने कुछ बाइसेस ला दिए उसमें। कैसे? पहले तो डिजाइन, क्या पता मैंने एक्सपेरिमेंटल करा ही नहीं, एक्सपेरिमेंटल में मैंने कंट्रोल ग्रुप रखा ही नहीं, कि एक ट्रीटमेंट को तो मैंने अपना XYZ दे दिया, और दूसरे ट्रीटमेंट को मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो ऑफकोर्स की बात है, जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है उसको XYZ तो कुछ ना कुछ ठीक कर ही सकता है ना। दूसरा क्या, सिलेक्शन बायस। अब मैंने देखा कि बूढ़े पेशेंट्स को मेरा ट्रीटमेंट काम करता नहीं है, यंग पेशेंट को करता है, तो मैंने दूसरे ग्रुप में ओल्ड पेशेंट्स रख दिए, और अपने ग्रुप में यंग पेशेंट्स डाल दिए, और मेरे ग्रुप में ट्रीटमेंट काम कर गया, तो मैं दिखा दूंगा कि ट्रीटमेंट अच्छा था मेरा। फिर एक प्रोसीजर बायस होता है कि मैं XYZ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ एक एक्सपीरियंस बंदे से, और जो दूसरे ग्रुप का पेशेंट बंदा है उसको किसी यंग वाले से बोल दे कि यहाँ जा तू कर दे। ठीक है। एंड थर्ड इज रिपोर्टिंग बायस, कि जो मैंने करने से पहले बोला था कि मैं ये चेक करूंगा अपने पेशेंट्स में, वो मैंने करा ही नहीं, और जो जो अच्छा था वो मैंने बता दिया कि ये अच्छा था। एंड लास्ट इज डाटा कलेक्शन, कि मैंने अपना बंदा ही बिठा दिया कि मेरा पेशेंट आएगा, तो अगर ये पेशेंट बोले ना कि मेरे को पेन ज्यादा हो गई है, तुम बोल दो कि तुम ऐसा कर दो कि पेशेंट जितना वाला बोल रहा है कि मुझे 100 में से 90 पेन है, तुम उसको 70-80 लिख देना। दिस इज रिपोर्टिंग बायस, द रिपोर्टिंग ऑल्सो, डाटा कलेक्शन ऑल्सो। तो मेरा अ, जो डाटा ले रहा है वो ब्लाइंडेड है ही नहीं। अब ब्लाइंडेड ब्लाइंडेड क्या होता है, छोटी टर्म्स में ये बताऊंगा कि अ, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये ग्रुप, कौन से पेशेंट मेरे पास जो आ रहा है वो किस ग्रुप का है, एक्सपेरिमेंटल का है या कंट्रोल का है। ठीक है। आपको बस पेशेंट को ठीक करके भेजना है एज अ नॉर्मल गाय, एज अ नॉर्मल पेशेंट, नॉट लाइक कि ये स्टडी से आया है और मुझे इसको ऐसे ऐसे ठीक करके दिखाना है, या मैं इस पर ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, या मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ब्लाइंडिंग इज। आपको पता भी नहीं होना चाहिए, और एंड में बताएगा कोई, आपको स्टडी कंप्लीट होने के बाद कि अच्छा ये वाला पेशेंट इसमें था। ठीक है। सो नाउ, फॉर clinicians only, how you can do evidence based practice in your settings। पहली बात तो स्टेप वाइज है पूरा पूरा, तो इतना कुछ डरने वाली बात है नहीं। लेट मी चूज अ कलर फॉर इट। ओके, लेट्स चूज ब्लू। सो फर्स्ट इज कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चन। तो पेशेंट की कोई भी आपके पास कंडीशन आई, आपको लगा कि ये इसको दिक्कत है, ये इसका डायग्नोसिस हो सकता है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने एक क्वेश्चन में अपने माइंड में बना लिया कि इस कंडीशन के लिए बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट क्या है। सेकंड स्टेप इज ट्रैक डाउन द बेस्ट एविडेंस। अब मैंने आपको बताया है कि कैसे एविडेंस को निकालना है, पूरी तरह नहीं बताया बट या, तो जैसे ये सोर्सेज है, वेट, या, दिस इज द सोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट डाटा। ओके। एविडेंस कहाँ से आप एविडेंस ढूंढ सकते हैं, कि हमेशा मैं या हैप्पी आपको नहीं बताने वाले ना कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट यू कैन यू हैव टू क्रिटिकली अप्रेज इट। जैसे बताया था भैया मैंने आपको कि आपको किस किस स्टडी पे रिलाय करना है, किस स्टडी पे रिलाय नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज इंटीग्रेटेड एविडेंस डिसीजन मेकिंग। ओके। आपके पेशेंट के हिसाब से आप वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर पेशेंट को फैंटम लिम्ब पेन है, और वो बोल रहे हैं आपको कि आपको टेंस लगाना चाहिए, पर आप ये देख पा रहे हैं कि पेशेंट का जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बहुत कम ज्यादा है, या ही इज नॉट एबल टू परसीव मच ऑफ द टच, इट कुड लीड टू बर्न्स आल्सो इन सम केसेस, ऐसा ऐसा वाला कंडीशन है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा अगर आपको आपके पेशेंट में वो फिट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपने चलो उस ट्रीटमेंट के हिसाब से आपने उसको कर भी दिया, तब भी आपको नहीं रुकना है, यू हैव टू सी कि वो ट्रीटमेंट काम करा या नहीं करा। ओके। सो 5 A's है यहाँ पे,
as you can see that ask, acquire, appraise, apply, audit, 5 A's है। आपको इस हिसाब से आगे बढ़ना है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आने के लिए, ठीक है। एंड नो फॉर दोज गाइस हु आर इनटू रिसर्च एंड सम ऑफ यू आर डूइंग एमपीटी, अपना थीसिस का टॉपिक ढूंढना होगा, थीसिस डिजाइन करना होगा, सम ऑफ यू माइट बी डूइंग पीएचडी और सम माइट बी डूइंग रेगुलर रिसर्च लाइक मी। सो उनके लिए क्या है, you have to identify the problem, develop a hypothesis, gather data, analyze data, apply the evidence, and assess the outcome. Have a screenshot of it. I know most of you are not researchers here, but research वालों के लिए ये one of the good slides है। They will be, मुझे कुछ स्टूडेंट्स आके पूछते हैं ना सर हमें आप टॉपिक बता दो हम किस पे रिसर्च कर पाए, हेल्प मी आउट इन दैट, मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ इस पे। So this is how I tell them, this is how you can proceed. Okay, so and again, the source of evidence is the same, most of them. Okay, great. So, happy, anything you want to add which I might have missed? No, it's perfectly explained by you, Dr. Shivam. So